بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ضیاء القرآن چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ انسان کی فطرت کا ہمیشہ یہ تقاضا رہا ہے کہ وہ ہمیشہ آنکھوں دیکھی چیز پر ہی یقین کرتا ہے۔ انسان کی انسٹنکٹ میں موجود یہ تجسس اسے ہمیشہ اکساتا رہتا ہے کہ کوئی بھی سنسنی خیز خبر اس کے کانوں میں پڑے تو وہ فوراً اسے دیکھنے کی ضد کرے۔ لیکن کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں ایسی ضد کرنا غرور اور بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے اور انسان کو کفر کی حد تک لے جاتا ہے، جس کا اسے علم بھی نہیں ہوتا۔ کچھ ایسا ہی غرور اور بے ادبی بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے کی، جس کی بہت بھاری قیمت انہیں چکانی پڑی۔ آج ہم اسی واقعے کو ڈسکس کریں گے، تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 55 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک اپنی آنکھوں سے خدا کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں۔ اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست سائقے نے تم کو آ لیا۔ اب اس آیت میں جس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے وہ بنی اسرائیل کے بچڑے کی عبادت کے عوض کفارہ ادا کرنے کے بعد کا واقعہ ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل عام کی سزا دینے کے بعد دوبارہ کوہ طور پر گئے تھے اللہ تعالیٰ سے مزید ہدایات لینے کے لیے۔ اس پورے واقعے کو میں آپ کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ پر واضح ہو جائے کہ اصل میں ہوا کیا تھا اور اس پوری کہانی کے پیچھے ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ قتل عام کے بعد بنی اسرائیل کو اپنے گناہ کی معافی مانگنے کا کہا گیا، تو اس وقت وہاں 12 قبیلوں سے تعلق رکھنے والے تقریباً 6 لاکھ لوگ موجود تھے، جن میں سے 70 معزز ترین افراد کو چنا گیا جو کہ باقی قوم کے بہاف پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ ہر قبیلے سے تقریباً 5 یا 6 افراد ایسے چنے گئے تھے جن کا اپنے قبیلے میں اثر و رسوخ کافی زیادہ تھا۔ تو ان 70 لوگوں کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس کوہ طور پر گئے۔ انہیں کوہ طور کے دامن میں ٹھہرنے کا کہا اور خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے اوپر چلے گئے اور اللہ کی طرف سے پتھر کی شکل میں تختیاں لے کر آئے جن میں بنی اسرائیل کے ان لوگوں کا معافی نامہ بھی شامل تھا اور آگے کے لیے مزید ہدایات اور شریعت کے مزید احکامات بھی شامل تھے۔ آپ اس قوم کی ہر درمی کا عالم دیکھیں کہ ابھی ابھی یہ لوگ اپنے شرک کے گناہ کا ازالہ بھگت کر آ رہے ہیں اور آئے بھی معافی مانگنے کے لیے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں وہ تختیاں پیش کی تو بجائے یہ کہ معافی قبول ہونے کے عوض یہ لوگ شکر ادا کرتے، الٹا یہ کہنے لگے کہ موسیٰ ہم تمہاری بات کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں۔ ہمیں کیا پتا یہ تختیاں کس نے لکھی ہیں، شاید تم خود ہی ہم سے چھپا کر انہیں لکھ لائے ہو۔ اب ان کا یہ مطالبہ سراسر ایمان اور ادب کے بالکل خلاف تھا۔ وہ اس طرح کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی مادی جسم نہیں رکھتا، وہ ان تمام ڈائمینشنز سے آزاد ہے جن میں انسان قید ہے۔ بائی دا وے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی ڈیمانڈ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی تھی جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈیمانڈ کرنے کا یہ طریقہ عاجزی، محبت اور احترام پر مبنی تھا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ موسیٰ تم ہمیں ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ ظاہر ہے کہ ایک ایسا انسان جس کا مادی جسم 3 ڈائمینشنز میں قید ہو، وہ ایک ایسی سپر پاور کو کیسے دیکھ سکتا ہے جو ہر طرح کی قید سے آزاد ہے اور قانون سے آزاد ہے، بلکہ وہ تو خود قانون بنانے والا ہے، لا میکر۔ قانون اس کے اندر آتے ہیں، وہ قانون کے اندر نہیں آتا۔ خیر، ان 70 افراد کا یہ مطالبہ کسی عاجزی یا شرمندگی کے باعث نہیں تھا، بلکہ ان کی یہ ڈیمانڈ سیدھا سیدھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور اللہ تعالیٰ کے وجود پر سوال تھی، جو کہ سراسر تکبر کی نشانی ہے۔ مطلب تم لوگ وہاں معافی مانگنے گئے ہو اور تمہیں ریٹن سٹیٹمنٹ میں معافی بھی مل گئی، پھر آگے سے ایسی بےہودہ بات اور ڈیمانڈ کر رہے ہو جس کا کوئی مقصد ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی یہ ڈیمانڈ سن کر پریشان ہو گئے کہ یہ لوگ میری سچائی بھی نہیں مان رہے اور آگے سے ایسی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جس کے پورا ہونے کا میں خود بھی اہل نہیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوا اور ان پر ایسی آسمانی بجلی گرائی کہ پلک جھپکتے ہی سب کے سب وہیں مر گئے، اور یہ سب ہوتے ہوئے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آسمانی کڑک یا بجلی کے لیے اس آیت میں لفظ سائقہ استعمال ہوا ہے۔ سائقہ کا مطلب ہے کہ ایک ایسی زبردست قوت یا زوردار کڑک جو فوراً موت یا ہلاکت کا باعث بن جائے۔ آسمانی بجلی اس کا زیادہ قریب ترین معنی ہے جو کہ سائنٹیفکلی اس بات کی کوئی سینس بھی بناتی ہے۔ اس بات کو آج کی سائنس کیسے بیان کرتی ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ آسمانی بجلی یا لائٹننگ سٹرائک ایک قدرتی برقی اخراج یعنی الیکٹریکل ڈسچارج ہوتی ہے جو کہ بادلوں اور زمین کے درمیان بنتی ہے۔ جب بادلوں اور زمین کے درمیان بہت زیادہ چارج جمع ہو گئے تو ایک زبردست ڈسچارج ہوتا ہے جو شدید روشنی یعنی فلیش، تیز آواز یعنی تھنڈر اور مہلک کرنٹ پیدا کرتا ہے۔ جب بجلی زمین سے ٹکراتی ہے تو 50,000 فارن ہائٹ کی حرارت پیدا ہوتی ہے
जो कि सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म है। एक बिजली का झटका 1 बिलियन वोल्ट या 30,000 एम्पेयर तक का हो सकता है और इसके लगने से इंसान पलक झपकने में ही हलाक हो सकता है या झुलस कर बेहोश हो सकता है। बाय द वे, ऐसे झटके में हलाक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बनी इसराइल ने जब यह गुस्ताखाना मुतालबा किया तो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत दिखाने के लिए इन पर लाइटनिंग स्ट्राइक या आसमानी बिजली गिराई। अब इस बात को कुरान और साइंस से कंपेयर करके देखते हैं। कुरान कहता है कि वो साइका से मर गए। साइंस भी यही कहती है कि ऐसी बिजली से इंसान फौरन मर सकता है। साइंस ये कहती है कि बिजली जमीन की तरफ चार्ज के तवाजुन को बरकरार रखने के लिए आती है और इस बिजली की जद में जो भी इंसान आ जाए वो फौरन मर जाता है और ये अमल 1 सेकंड से भी कम वक्त में होता है। यहाँ कुरान और साइंस में कोई तजाद नहीं, बल्कि साइंस तो इस कुदरती अमल की असल वजह भी बयान करती है। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि ये वाकया कोई मोजज़ा था या कोई नेचुरल रिएक्शन। ये ऐन मुमकिन है कि अल्लाह ताला ने आम कुदरती आसमानी बिजली को एक खास वक्त पर एक खास कौम के ऊपर नाज़िल करके इसे मोजज़ा बना दिया और ये भी मुमकिन है कि ये बिजली आम फिजिकल कवानीन से मावरा हो। दोनों सूरतों में साइंस इस तरीका कार को समझा सकती है मगर इसके इरादे या मकसद को नहीं, वो ईमान का हिस्सा है। इस चीज को आप इस टेबल से समझ सकते हैं कि दोनों सूरतों के पहलू साइंस की नजर में क्या है और ईमान की नजर में क्या है। सारे साइंसी कानून अल्लाह ही के बनाए हुए हैं और अल्लाह जब चाहे, जिस तरह चाहे और जैसे चाहे इंसान को सजा देने के लिए इन कवानीन का इस्तेमाल कर सकता है। और अब इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में आखिरी बात, अल्लाह को कोई नहीं देख सकता, हत्ता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मेराज के सफर में अल्लाह ताला को नहीं देखा, क्योंकि जिस दिन अल्लाह दिखाई दे गया वो दिन ही क़यामत का होगा, क्योंकि अल्लाह को देख लेने के बाद कोई इम्तिहान बाकी ही नहीं रहेगा। उस दिन फिर सिर्फ फैसला ही होगा, सजा और जजा का फैसला। ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون। तुम बेजान होकर गिर चुके थे मगर हमने तुमको जला उठाया, शायद कि इस एहसान के बाद तुम शुक्रगुजार बनो। ये आयत अल्लाह की कुदरत की एक ऐसी निशानी को वाज़ेह करती है जिसे आज का इंसान सीरियस ही नहीं लेता। यहाँ तक कि बहुत से मुसलमान ऐसे ऐसे गुनाह करते दिखाई देते हैं कि जैसे उन्होंने कभी मरना ही नहीं, और अगर मर भी गए तो दोबारा कभी जिंदा नहीं होंगे। क्योंकि अगर हमारा मौत के बाद की जिंदगी पर पुख्ता यकीन हो तो कोई भी गुनाह करते हुए इंसान की रूह कांप जाती है। अल्लाह के सामने जवाबदारी का यकीन उसे इस हद तक परहेजगार बना देता है कि जिंदगी का हर कदम बहुत फूक फूक कर रखता है। लेकिन अफसोस, काफिर तो काफिर, मुसलमानों में भी ऐसे कोई आसार नजर नहीं आता। जैसा कि हम पिछली आयत में डिस्कस कर चुके हैं कि आसमानी बिजली का एक झटका इंसान के ऊपर क्या असर करता है, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में अब ये बताया जा रहा है कि तुम बेजान होकर गिर चुके थे। मतलब इस वाक़े में उन अफराद की एक्चुअल मौत वाक़या हुई और एक्चुअल में उन्हें मौत के बाद जिंदा किया गया था। अब वो कितनी मुद्दत तक मुर्दा हालत में पड़े रहे, इस बात का जवाब हमें कुरान और हदीस में नहीं मिलता। अलबत्ता कुछ मुफस्सिरीन चंद रोज का कहते हैं और कुछ मुफस्सिरीन 7 दिन का अरसा बताते हैं। हकीकत अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो कितनी मुद्दत तक मुर्दा हालत में पड़े रहे, और ये मुद्दत जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि जो असल सबक हमें सीखना चाहिए वो ये है कि हम इस बात पर पुख्ता यकीन करें कि अल्लाह ताला मौत के बाद जिंदगी देने पर भी कादिर है और उसके लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं। लिहाजा हमें अपनी हर नकलो हरकत का जवाब देना है। अच्छा, अब आपको एक मजे की बात बताता हूं। अक्सर हम देखते हैं कि फलां बंदे का इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ कि वो मौत के मुंह से वापस आया। आप नोट करके देख लें कि मौत को इतना करीब से देखने के बावजूद भी लोग नहीं सुधरते। जैसे कि हाल ही में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ था, पूरे जहाज में से सिर्फ एक बंदा सर्वाइव कर गया जिसका नाम विश्वास कुमार रमेश है। आप देख लें कि वो भी काफिर है। ये एक बहुत ही बोल्ड एग्जाम्पल है कि मौत के मुंह से बच जाने के बावजूद ये बंदा अल्लाह के वाहदाहु ला शरीक होने पे ईमान नहीं लाया। बनी इसराइल पर तो इससे भी बड़े बड़े मोजे जाहिर हुए हैं। उनको तो एक्चुअली मार दिया गया था और फिर जिंदा कर दिया गया था ताकि वो शुक्रगुजार बने, मगर वो फिर भी शुक्रगुजार नहीं बने। अब एक चीज और है जो मेरे दिमाग में भी खटक रही, मैंने उस पर रिसर्च की तो मुझे बहुत ही हैरान कर देने वाले रिजल्ट्स मिले, जो कि अब मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम सोकर उठते हैं तो रात में जो ख्वाब हमने देखा था वो भूल जाते हैं और हम एक अजीब सी बेचैनी की हालत में आ जाते हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है हमारे साथ, और उस बेचैनी की वजह भी हमें मालूम नहीं होती क्योंकि ख्वाब याद नहीं रहता। तो अल्लाह ताला ने ये कहा है कि तुम्हें दोबारा जिंदा किया है ताकि तुम शुक्रगुजार बन सको। अब इस बात पर जरा गौर करें तो समझ में आता है कि बनी इसराइल से शुक्र अदा करने का मुतालबा भी तभी किया जा सकता था कि अगर उन्हें मरने से पहले और दोबारा जिंदा होने के बाद का पूरा सीन याद हो, यानी उन्हें वो वजह भी अच्छी तरह
याद हो कि जिस वजह से उन्हें मौत दी गई, और उन्हें वो वजह भी अच्छी तरह याद हो जिस वजह से उन्हें दोबारा जिंदा किया गया, क्योंकि ऐसी सूरत में ही उन्हें शुक्रगुजारी का कहा जा सकता है। वैसे तो हर हाल में ही अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन बनी इसराइल के केस बहुत स्पेशल है। ऐन मुमकिन है कि उन्हें मरने से पहले और जिंदा उठाए जाने के बाद का पूरा सीन याद हो, क्योंकि ये बात तो आज की साइंस भी प्रूव करती है कि इंसान के मरने के बाद भी उसका दिमाग कुछ टाइम तक प्रॉपर काम करता है, और अगर ऐसी हालत में इंसान दोबारा जिंदा हो जाए तो उसकी सारी मेमोरी रिस्टोर हो सकती है कि वो किस हालत से दोबारा जिंदा हुआ है। अब आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि बनी इसराइल को दोबारा किस बुनियाद पर और क्यों जिंदा किया गया, तो इसका जवाब हमें सूरह आराफ की आयत नंबर 155 और 156 में मिलता है, जिसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी दोबारा जिंदगी की दुआ मांगी थी, क्योंकि एक नबी और रसूल की ये खासियत होती है कि वो अपनी कौम को लेकर बहुत ही शफकत रखने वाला और रहनुमाई करने वाला इंसान होता है, चाहे वो कौम कितनी ही नाफरमान क्यों ना हो। हजरत मूसा ने ये दुआ मांगी थी कि ऐ मेरे रब, अगर तू चाहता तो मुझे और उन सब को इससे पहले ही हलाक कर देता। क्या तू हमें इस वजह से हलाक करेगा कि जो हम में से कुछ नादानों ने किया? ये तो तेरी आजमाइश है और इसके जरिए तू जिसे चाहे गुमराह कर दे और जिसे चाहे हिदायत दे दे। तू ही हमारा कारसाज है, बस हमें माफ कर दे, हम पर रहम फरमा, और तू सबसे बेहतर बख्शने वाला है। अगर आप इस दुआ पर गौर करें तो इसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आजिज़ी, अल्लाह ताला का उन पर इख्तियार, फिर अल्लाह की शान में तारीखी अल्फाज, फिर उसकी रहमत और माफी का सवाल आपको साफ नजर आएगा। और इंसान होने के नाते अपने मालिक यानी अल्लाह ताला से अपनी हाजत पूरी करवाने का सही सलीका भी यही है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ में हमें नजर आता है कि उसके हुजूर आजिज़ी के साथ खड़ा हुआ जाए, उसका हम पर जो इख्तियार है इस बात का इतराफ किया जाए, फिर मालिक की शान बयान की जाए जो कि वाकई सिर्फ उसी के लायक है, फिर उसकी खासियत का इतराफ किया जाए और फिर मगफिरत तलब की जाए। और अगर आप भी अपनी दुआओं का यही सलीका अपनाएं तो बेशक वो दुआ कबूल भी करता है और इंसान के वहमो गुमान से भी ज्यादा वो अता करता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आजिज़ी के साथ मांगी गई दुआ ही वो वसीला थी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उन 70 अफराद को दोबारा जिंदगी बख्शी और दोबारा शुक्रगुजार बनने का मौका दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और पसंद आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं ऐसी अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।